Hello, we will wait for 5 minutes, then we will continue. So we are starting the meeting. Hey guys, some of you know me or some of don't. So my name is Viraj. I am your co-lead for current GDSC chapter at our college. So today's session is more about DSNCP, right? Let me ask you something. Uh, do you guys know what is DSA, why it is used, and where it is used? You guys can give your opinion in the chat section. I'm waiting for your reply. Okay, basically, top giant companies, or you can say MNCs, like multinational companies like Amazon, Facebook, Google, Microsoft, and many more. They are hire candidate based on their problem solving skills. And do you guys know what
what are the packages this company gives to their employees? See, it's not a lecture, it is an intellectual lecture. So you can give your opinion in the chat section. Okay. Okay, Anish. Okay, the range lies between 30 to 50 lakh per annum in software engineering domain. And one more thing I wanted to tell you that package is the package divided by 12 is not your salary which is get per month. वो आप जब भी रिसर्च करोगे तो पता चलेगा कि मेजर कंपोनेंट्स होते हैं लाइक स्टॉक्स हो गया, फिर आपका stocks, joining bonus, and all that. So DSA will improve your problem solving skills, and it will help you to clear your interviews. And uh, the pros of these DSA is every uh, you will get demotivated sometime. Not be, you will be not being consistent. It is time consuming है. Or so, without wasting any time, I would like to call Meet Kataria, who will be your guide, and he will explain what is TSA and steps you need to follow. Meet, over to you. Yeah, sure. Can you just make sure that am I audible correctly? Yes, you are all audible. Okay, thank you. And Miraj, can you just share your screen for the mind map? Yep, it is visible. It is visible now. Okay. So, hi guys. Myself, Meet Kataria. I am currently a computer engineering student in seventh semester. So, and one more thing, from my past internship experience, I have done one internship at Coding Ninjas. I think you guys have might heard this name. Where my key role is of teaching assistant and teaching students data structures and algorithms and competitive programming, right? So the main motive for this session is about like discussing what is this DSA and what is this competitive programming actually is. So before going to that part, I just want to know and I just want to tell you guys that see ये कोई lecture नहीं है ठीक है इसको एक discussion की तरह रखते हैं and like if you guys have any doubt कुछ भी bouncer जा रहा है please stop us at that point so that we can make your doubts clear right. अगर बीच में कोई भी डाउट आ रहा है कोई भी इश्यू हो रहा है प्लीज लेट अस नो फील फ्री टू आस्क राइट सो बेसिकली डीएसए एज विराट सेड इट इज द की थिंग विच यू नीड टू डू अगर आपको 4 साल के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डोमेन में घुसना है ठीक है जैसे कि विराज ने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल अमेजोन गूगल and many more thousands and hundreds of more companies are like this which hires computer engineering students for software engineering role as well as software engineering intern as well and they pay like tremendously right as you guys Anish and one more guy said 12 lakh per annum yes this is the thing but more companies are like that which even pay 30 to 40 lakhs even also right so let's get started like DSA में like होता क्या है and what flow you guys need to follow and आपको steps कौन कौन से लेने हैं right so हमने एक short and crisp वाला थोड़ा रोड मैप बनाया आप लोगों के लिए so that आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि DSA बेसिकली है क्या और बेसिकली आपको करना कैसे है ठीक है so Viraj, step one. Okay. So the step one is learn any programming language. Okay. Learn any programming language. अभी आप में से कोई लोग ऐसे होंगे जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी आती है ठीक है लेकिन व्हाट आवर प्रेफरेंस इज सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन ये तीन ऑप्शन हमने दिए लेकिन पिछले आई गेस 1.5 साल से 1 साल से मैं विराज और ध्यानी हम सब ये कर रहे हैं so from our personal experience we recommend you to guys
टू फॉलो सी प्लस प्लस। मैं खुद जावा में प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स करता हूं, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लोग सी प्लस प्लस से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि सी प्लस प्लस का लाइक एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो आगे जाके आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सो स्टेप वन इज लर्न एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम द गिवन थ्री, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एंड वन मोर, एडिंग वन मोर थिंग, सी प्लस प्लस इज अवर पर्सनल प्रेफरेंस। आप लोग वहां से स्टार्ट करिए, ऐसा हमारा आपको एडवाइस है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, विराज कैन यू जस्ट ओपन द सेकेंड स्टेप? यप। सो सेकेंड स्टेप, अभी मान लीजिए आपने सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी आपने सी प्लस प्लस से स्टार्ट कर दिया, तो अभी आप में नेक्स्ट स्टेप उसका क्या है कि आपको वो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा क्लियर करने हैं। यू गाइस नीड टू मेक योर फंडामेंटल्स इन दैट लैंग्वेज वेरी 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 शार्प। सो फंडामेंटल में बेसिकली क्या होता है, लूप्स हो गया, कंडीशंस हो गया, ऑपरेटर्स हो गया, राइट। अभी कुछ लोग ऐसे हो गए जिनको ये लूप्स, कंडीशन, ऑपरेटर, ये तीन वर्ड मालूम नहीं पड़े होंगे, राइट। लेकिन फॉर दोज हु नोज, आपको ये चीज में इतना कमांड लाना है कि आगे जाके आपको कोई चीज में दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड फॉर दोज हु डोंट नो, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये तीन चीजें उसकी बहुत ही बेसिक चीज है, राइट। तो आपको ये तीन चीजों में बहुत ही ज्यादा ग्रिप लानी है, ठीक है। दिस इज अ स्टेप टू। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप थ्री। यप। सो स्टेप थ्री इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी देखिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, कौन सी भी ले लीजिए, सी प्लस प्लस ले लिया आपने, ठीक है। आपको उसके बेसिक्स क्लियर हो गए। नाउ स्टेप थ्री में फर्स्ट पार्ट ऐसा है कि आपको हैकर रैंक पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज कि हैकर रैंक आखिर क्या है, ठीक है। हैकर रैंक बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। सी वीराज ने स्क्रीन में दिखाया हुआ है आपको। हैकर रैंक इज जस्ट अ वेबसाइट। आप कोई लैंग्वेज चूज कीजिए, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे आना है, अकाउंट बनाना है, और इस क्वेश्चन पे, इस वेबसाइट पे आके यू गाइस नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल के प्रॉब्लम्स हो गए, लाइक दो वैल्यूज को ऐड कीजिए, ठीक है, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, दो वैल्यू में से ग्रेटर कौन सी है ये बताइए, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। एंड उसमें दूसरा स्टेप ये है कि आपको एटलीस्ट हैकर रैंक पे एटलीस्ट 20 to 30 प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है, एटलीस्ट, ठीक है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो जाता कि लाइक या मैं इसमें कॉन्फिडेंट हो चुका हूं अभी, तो तब तक आपको आगे के स्टेप 4 पे मूव नहीं करना है। एटलीस्ट 30 to 40। अगर आपको ऐसा लगता है कि 30 क्वेश्चंस मैंने कर लिए लेकिन आई एम स्टिल नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है, तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 20 to 30 एटलीस्ट मिनिमम करना है। उसके अगर आपने 5 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन किए, फिर आगे मूव नहीं करना है, 20-30 एटलीस्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक तो ऑनलाइन कंपाइलर का आइडिया हो जाएगा कि ऑनलाइन जज पे कैसे कोड सबमिट करना है, और थोड़ा फेमिलियर भी हो जाएगा, और थोड़ा बूस्ट भी मिल जाएगा, तो कॉन्फिडेंट इनफ हो जाओगे, राइट। सो दिस इज द स्टेप 3। नाउ मूविंग ऑन टू स्टेप 4, राइट। एंड लिसन गाइस, दिस इज लाइक नॉट एन लेक्चर एनीमोर, प्लीज डोंट टेक इट एज ए लेक्चर। अगर कुछ भी बाउंसर जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, प्लीज पॉज मी एट दैट मोमेंट सो दैट आई कैन गाइड यू, ठीक है। नाउ कमिंग टू स्टेप 4। स्टेप 1 में क्या किया, बेसिक सीखा। सेकंड में क्या किया हमने, लाइक वो उसके फंडामेंटल्स क्लियर कर लिया। स्टेप 3 में हैकर रैंक में प्रैक्टिस कर लिया। नाउ इतना करते करते आपको लाइक 1-2 हफ्ता हो जाएगा, 1-2-3 हफ्ता हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टेप 4, ये सबसे मेन स्टेप है, और यहां से आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी एक्चुअल में स्टार्ट होती है। स्टेप 4 ये है कि अगर आप सी प्लस प्लस में कर रहे हो डीएसए और या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कह लो, तो तब आपको सी प्लस प्लस में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एंड जावा कर रहे हो तो जावा में आपको जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीखने पड़ेंगे, ठीक है। अभी ये नाम बड़े फैंसी है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी एंड जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, बट ट्रस्ट मी इट इज नॉट फैंसी एज इट साउंड्स, राइट। ये बेसिकली कुछ नहीं है, सी प्लस प्लस वाले जो कंपनी है उन लोगों ने पहले से एक लाइब्रेरी बना के दी हुई है हमको सी प्लस प्लस में, जिसका हम यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप सी प्लस प्लस में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, अगर आप सी प्लस प्लस को लेके आगे बढ़ रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। यू कैन नॉट मूव ऑन विदाउट लर्निंग स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। एंड सेम वे इफ यू आर डूइंग इन जावा, देन कलेक्शन फ्रेमवर्क इज द थिंग विच यू गाइज नीड टू फॉलो। और उसके संग संग अगर आप जावा में कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट भी मालूम होने चाहिए, ठीक है। ये दो हो गए हमारा स्टेप, और ये आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम का बेस बनेंगे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी बेस ऑफ योर फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी, right? This is the step 4 and this is the most important step from all the 7 steps which I have mentioned over here. So you guys need to take it like थोड़ा इंपॉर्टेंस देना इसको, स्टेप 4 को। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी अगर ऐसा समझ के किया कि ये तो इजी है, हो जाएगा, ट्रस्ट में इट इज वेरी इजी, बट ऐसा हल्के में नहीं लेना है इसको, राइट। नाउ कमिंग टू द स्टेप 5। यप। नाउ अभी देखिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई,
ठीक है, उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आपने हैकर रैंक पे 20-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, राइट, आपको स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी भी आ चुका है। नाउ यू आर गुड टू गो एंड यू कैन स्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, आपको कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है, लाइव इंटरव्यू में या फिर ऑनलाइन असेसमेंट में या फिर ऑनलाइन एग्जाम में जो क्वेश्चंस एक्चुअली में आते हैं, यू गाइस नीड टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट। ठीक है, अभी आप मान लीजिए कि जेई की एग्जाम दे रहे हैं, तो जेई के एग्जाम के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर करते हैं ना, वैसी सेम चीज है। प्रीवियसली पूछे गए इंटरव्यू में या फिर प्रीवियसली पूछी गई इंटरव्यू के अच्छी अच्छी कंपनीज के इंटरव्यूज में, लाइक गूगल, अमेजॉन, वो क्वेश्चंस अभी आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, बट बहुत ज्यादा चांस है कि आपको सिमिलर क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो स्टेप 5 ये है कि आपके पास दो वेबसाइट है, लीड कोड और जीएफजी, यानी कि गिग्स फॉर गिग्स। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप लीड कोड पे जाओ, उसका बेसिकली यूआई अच्छा है और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी अच्छा है। ठीक है, लीड कोड या फिर जीएफजी, आपको जो अच्छा लगता है वहां पे जाके अकाउंट बनाना है और कंसिस्टेंटली एवरी डे आपको 2 से 3 प्रॉब्लम उसके ऊपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक वाले, इजी वाले पहले करना है, ऐसा नहीं है कि सीधा हार्ड वाले पे जंप करना है, आपको पहले इजी से स्टार्ट करना है। इट विल टेक टाइम। ठीक है, आपको आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, लेकिन इट विल टेक टाइम। सी, गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट, दिस इज द सिग्मा रूल विच यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। पहले आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, और नई नई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स सीखने हैं विच कम्स ऑन द वे। ठीक है, आपको लीड कोड पर और जीएफजी पर बहुत ही अच्छा कमांड लाके रखना है। दिस इज द स्टेप 5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये आपका प्रूफ रहेगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं एक्चुअली में। ठीक है, now step 6 is all about like switching and practicing competitive programming. So I think Dhyani is like more capable for answering this concept and explaining you guys this concept. So I would like to hand over the further session to Dhyani, but adding one more thing, guys, अगर कुछ भी doubt हो please let us know so that we can clear you guys. Okay, at the end we are arranging a Q&A session also, but in between if you guys are getting any kind of doubt, please let us know. Okay, thank you. Thank you, Meet. I hope I'm audible to you all. Yes, you are audible. Yeah, okay, thank you. So, hello everyone. I am Dhyani Desai, your competitive programming lead for the current CDSE chapter. So, guys, CP, competitive programming, नाम सुन के क्या पहले थॉट आता है दिमाग में कि क्या होगा competitive programming? Any guesses? Anybody? You can drop in the chat section if you don't want to speak it out. Okay, so see, competitive programming, as the name suggests, is something जहाँ पे competition होगा, and it is kind of a mental sports, a sports for programmers. जैसे, and you see, sports competition क्या होता है? We are going specifically for something. We have some goal. So before starting competitive programming, please make sure that you have a goal that will keep you guys motivated, because CCP is not like कि overnight आ जाएगा आपको. It will take a lot of consistency, a lot of efforts, and बहुत बार बीच में ऐसा आपको होगा कि क्यों करना है, इसको छोड़ देते हैं, इतना क्यों टास्क करना है. So make sure you first thing is that you have a goal कि हमें यहाँ पे जाना है. When you are running a race, see what you think कि हमें 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, इतना कवर करना है. You have a goal, you have a trophy waiting for you. So same thing here, the trophy, the main trophy will be if you guys wish to do a job in some MNCs, then the goal here will be that MNC, your dream job will be the goal here. So when you are stuck, just make sure कि आप अपने goal को याद करें. Be consistent. So it is nothing but just a sport, and more specifically a mind sport, where the participants or the candidates, we write programs to solve a given set of questions. And now the programs किससे related होंगे? The programs will be related to algorithms, maths, data structures and logic. और इसमें like you will be judged on some evaluations, there will be some factors जहाँ पे आप judge होंगे. So the main 2 factors will be time complexity and space complexity. बहुत ज़्यादा फैंसी साउंड कर रहा होगा, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की कितने टाइम में आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में, कितने जल्दी वो चीज़ रन हो जाएगी. एंड इसमें रैंकिंग्स, नाउ व्हेन वी आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्टेस्ट, देयर विल बी सम रैंकिंग्स गिवन. ना वो रैंकिंग्स किस पे बेस्ड होंगी? नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू विल बी सॉल्विंग, द टाइम टेकन एंड द एक्यूरेसी रेट. लाइक ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सॉल्व ना कर पाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में रॉन्ग आंसर है, देन द सेकेंड अटेम्प्ट. सो जैसे जैसे जितने ज्यादा अटेम्प्ट होंगे उतने ज्यादा आपका स्कोर कम होता जाएगा.
So these are the factors जहाँ पे you will be evaluated when doing competitive programming. Now thing comes the preferred language. जैसे मीत ने कहा कि we personally suggest कि आप लोग C++ यूज करें. Now उसके बहुत सारे advantages हैं. The first thing is कि उसका community support बहुत ज़्यादा अच्छा है. And the next it is faster than Java and Python. I personally started it with Python but switched to C++ on the way between because बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी सी प्लस प्लस में आती है एंड इट इज दैट के सी प्लस प्लस में ही करो आप लोग. It is an extra edge over the other programming languages because it is faster and it has great community support. Now, what will be the benefits of doing CP? It will help you prepare for coding interviews at major companies, the first and foremost benefit, and maybe a goal of for many of you, including me. And the next thing is it will increase your problem solving speed because you will be giving the contest in a limited time on a time constraint. So the faster you will come to it, the greater will be your chances of winning. So it will increase your problem solving speed over a period of time. It is a great mentor exercise. It also gives you a way, a new, you will फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम है उसको हम बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सो वेल डूइंग सीपी आपको वो पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन को आप कितने सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे. बट योर गोल विल बी टू रीच टू एन ऑप्टिमाइज सोल्यूशन जो सबसे कम स्पेस भी ले एंड सबसे जल्दी भी रन हो जाए. एंड लास्टली इट इज फन. ट्रस्ट मी गाइस, इट इज अ लॉट फन. इट इज रियली एडिक्टिव. एक बार अगर आप स्टार्ट करोगे देन yes, starting में थोड़ा efforts आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा. You will have to be consistent, but at the end it is a lot fun. Just like any other sport जिसको हम enjoy करते हैं, CP is also a great fun. Now where the platforms जहाँ पे आप इसको practice कर सकते हो is Hacker Rank, Hacker Earth, Code Chef, Code Forces, Lead Code, and Coding Ninjas. Next, step 7. Make sure that you are consistent. बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए. मेक श्योर यू स्टे कंसिस्टेंट. Lastly, we are also having a resources guide that you will be following. A to Z striver sheet is kind of a checklist sheet कि जिससे आप start कर सकते हो कि okay, I have done ये topic, ये tick, next topic ये tick. So you get to know कि okay, इतना cover हो चुका है, इतना is to go, this much part of is to go. Then Code Help, Aditya Verma, Take You Forward, and Pep Coding. These are the YouTube channels that you can refer to for great content about DSA and CP. Lastly, students, you all need to create a Discord account if not already, and hop into the server of GDSC GIT. The link will be shared in the chat box. Since ये हम लोग का first session था, so we kept it on Google Meet. But from now onwards, all the sessions, all the guides and everything will be done on the Discord server. So make sure that you are joined in the Discord server. Create a Discord account and join in the server. Okay, now how the flow will be working. What will happen every day? You all will be given some questions or tasks to solve, and you need to solve all those questions. Be consistent, please. You need to follow you need to solve all the questions, and in case of any queries, you can ping Meet, Viraj, or me on the Discord, and we will solve your problems as soon as possible. The questions will be posted every day before 12 noon, and make sure you all stick to a routine and be consistent, and have a healthy competition with the peer group. Yes, that's all from my end. Over to you, Viraj. We have patience, guys. Okay, I think Viraj's mic is not working right now. So, guys, like थोड़ा बहुत आपको हल्का हल्का तो आइडिया हो गया ना कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एंड कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली है क्या. एनीवन थोड़ा अगर अगर आपको कुछ भी आइडिया होगा तो जस्ट राइट +1 इन द चैट. क्या आपको लाइक हल्का हल्का आइडिया तो एटलीस्ट पता चल गया कि एग्जैक्टली हम किस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. यप नाइस यार, आपको पता चल रहा है, ये यही बहुत बड़ी बात है. +1 दिख रहे हो. ओके ओके, एक्चुअली फ्रूटफुल रहा हमारे लिए, हमने एक्सप्लेन किया और आपको पता चला. दैट्स एक्चुअली फ्रूटफुल फॉर अस. गुड नाइस. ओके, एवरीवन इज राइटिंग +1. ओके गुड. सो लाइक अगर आपको अभी कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग सीपी, रिगार्डिंग डीएसए, रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिगार्डिंग एल्गोरिथम्स,
रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनीथिंग यू कैन जस्ट आस्क. अगर लैंग्वेज का कोई इश्यू है, कुछ भी आपको पूछना है, यू गाइस कैन टर्न ऑन योर माइक और जस्ट राइट आउट इन द चैट सेक्शन. वी विल लाइक टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चन. एंड एज ध्यानी सेड, यस वी विल बी हैविंग, अगर आपको कुछ डाउट वगैरह आ रहा है तो हम वीकली सेशन अरेंज कर सकते हैं, राइट? वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को ऑन डिस्कॉर्ड, वेयर वी कैन सॉल्व योर डाउट्स. सी वी आर नॉट सेइंग कि हम इसमें बहुत ज्यादा चैंप है, हम ज्यादा इसमें बहुत प्रो है, बट हम भी कर रहे हैं एंड वी विश कि आप लोग भी करो. ठीक है, अगर आपके पास ये ग्रुप का सपोर्ट बहुत अच्छा है, अगर आप ग्रुप में करोगे तो आपके साथ बहुत ज्यादा, आपके पास बहुत ज्यादा फायदा है. ठीक है, आपको मोटिवेशन का कभी लैक नहीं होगा, क्योंकि आप कॉलेज में और हर टाइम यही डिस्कस कर रहे हो कि भाई तूने कौन सी प्रॉब्लम की आज, इसमें ये इश्यू आ रहा है, मेरे को इसमें हेल्प कर दे, राइट? सो पीयर ग्रुप का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, कंपटीशन भी उस लेवल का मिलता है आपको, राइट? सो वी इंसिस्ट यू गाइस टू डू दैट टुगेदर, सो दैट आपको एक हेल्दी कंपटीशन मिले और अच्छे से ग्रो करो आप, राइट? आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, प्लीज टर्न ऑन योर माइक और जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट और चैट सेक्शन, प्लीज. Hello, am I audible, Mit? Yes, you are audible. Yeah. Okay, Sahil. So your question is only focus on DSA? No. So my answer is no. We are doing projects also. I hope that answers your question. सी डीएसए आप कर लोगे, आप अपने रेज्यूमे में डाल भी दोगे, आपका कितना भी अच्छा प्रोफाइल हो जाएगा. लीड कोड पे आपने 400-500 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आप कोड फोर्सेस पे प्यूपिल स्पेशलिस्ट बन गए, ठीक है. ये बहुत अच्छी साइन है और आपको हजारों बंदों के आगे रख देगी ये चीज, ठीक है. लेकिन हैविंग अ गुड प्रोजेक्ट इन योर रेज्यूमे इज एन एक्स फैक्टर. ये आपको हजारों नहीं 10,000 लोगों के आगे रख देगी. अच्छा प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है आपके रेज्यूमे में. लेकिन प्रोजेक्ट सेक्शन भी बेसिकली क्या है, प्रोजेक्ट्स पे आप फोकस लास्ट के 1-2 महीने में भी कर सकते हो, बट व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. एज ध्यानी एंड विराज सेड, यू गाइस नीड टू बी कंसिस्टेंट इन दिस थिंग, ठीक है. It takes more than 1 year. Yes, absolutely, it takes a lot of time, a lot of time. Anyone guys, don't you guys have any kind of questions? Okay, guys, how many of you know some any of the programming language? Anybody who knows C or C++? Drop in the chat section which language you know, if you know. Okay, C, C++. ओके, सो किसी के Nice, मन में nice, ये nice. क्वेश्चन नहीं आया कि हम सी से क्यों नहीं कर सकते, हमने क्यों सी प्लस प्लस जावा और पाइथन बोला? एनीबडी कि सी से क्यों नहीं कर सकते डीए से? मीत, ओवर टू यू. Yes, sure. अरे इट्स टीडियस. नहीं, ये तो आंसर है ही, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा रीजन है. इट्स टीडियस, या दैट्स ट्रू आल्सो, बट सॉरी, इट्स पॉप. व्हाट इज दैट? Someone has written it's pop. Oh, you mean? Sorry? प्रोसीजर ओरिएंटेड. Yeah, that's true. That's true. Okay, correct. That's true. Yeah, that's true. Yeah. C is actually procedure-oriented language, as this guy replied. That's correct. C does not have any predefined functions. Okay, that's kind of true. Okay. See, the most important and the most deviating factor for not using C while competitive programming and data like problem solving, it's के उसमें object oriented programming नहीं होती है, right? As someone said, procedure oriented language है, उसमें ये चीज नहीं होती है. एंड इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है, स्टैक क्यू वगैरह उसको आपको इनबिल्ट खुद से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. ये सारी चीजें इंप्लीमेंटेड नहीं है पहले से, राइट? तो सी काइंड ऑफ टीडियस एज समवन सेड प्रीवियसली, बट या द मेन रीजन फॉर इट इज कि इसमें इनबिल्ट फंक्शंस नहीं है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. मैं खुद पर्सनली जावा में करता हूँ, ठीक है. ध्यानी पाइथन में करती है, वीराज C++ में करता है. लेकिन हम तीनों का प्रेफरेंस ये है कि अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो
तो आप C++ से कीजिए, ठीक है। मैंने एक साल इसमें दे दिया, फिर मेरे को पता चला कि या C++ में करता तो फायदा रहता, लेकिन एक साल मैंने कर लिया था, सो बीच में स्विच करना मेरे लिए बहुत ही टफ था। सो हमने जो गलती की है, वी वांट कि आप वो ना करें। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो C++ से स्टार्ट कीजिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा उसमें, ठीक है। एनी अदर डाउट्स, एनी अदर डाउट्स रिगार्डिंग दिस C++, एनीथिंग एल्स? व्हाट इफ वी स्टार्टेड विद जावा? या एज आई सेड, अगर आपने जावा से स्टार्ट कर दिया है देन दैट्स नॉट एन इश्यू। सी, आपको अलग अलग ट्रिक सीखनी पड़ेगी जिससे आप अपने कोड को एफिशिएंट बना सकते हैं। मैं खुद अभी तक, मैं एक दो साल से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद जावा में करता हूँ, और अभी तक मेरे को कोई इश्यू नहीं हुआ है। इश्यू जब जब हुआ है तब एक दो दिन बिगड़े हैं उसमें, लेकिन उसका सोल्यूशन मैंने फाइंड एट लास्ट कर ही लिया है। लेकिन C++ में उतनी दिक्कत नहीं होगी। व्हाट आई एम सेइंग इज C++ हैज गॉट एन एक्स्ट्रा एज ओवर जावा, राइट। मैं खुद भी C++ में ही करता हूँ। आई स्टार्टेड अ लिटिल विथ पाइथन, ओके, नो नॉट एन इश्यू। आपने पाइथन से भी स्टार्ट किया, नॉट एन इश्यू। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस बना ली है पाइथन में, देन इट्स ओके, ठीक है, देन इट्स ओके। लेकिन आपने अभी थोड़ा थोड़ा टपल वगैरह किया है, अगर आपने सिर्फ प्रिंट करना सीखा, इफ एल्स सीखा है, तो आप C++ में स्विच कीजिए या फिर जावा में स्विच कीजिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है, राइट। ओके, आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी क्वेरी। Okay, as both are OOP language, we represent everything as an object, which is helpful for a real world problem. Okay, what does this mean actually? What's the relevance over here? Is that your question? Okay, no problem. Any other doubt? Is there anyone जिसने already DSA वगैरह start कर दिया है और किसी को पहले से पता था कि या इसका ये यूज है, सो वो पहले से कर रहा है? Is there anyone कि जिसने पहले से ये सब किया हुआ है या फिर कर रहा है, जिसको ये लीड कोड वगैरह, कोड शॉप वगैरह पहले से आइडिया है और उस पर प्रैक्टिस कर रहा है? ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक यू गाइस हैव गॉट द आंसर। आइडिया है बट स्टार्ट नहीं किया। ओके, आई हैव आइडिया बट यू आर टॉकिंग। ओके, ओके, सो या दिस इज द राइट टाइम एक्चुअली। जितना हो सके उतना जल्दी आप कर सकते हो और उतना ज्यादा आपको हेल्प होगा, राइट। और मेन 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 चीज ये है कि हम जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में थे तब हमें ऐसा गाइड करने वाला कोई था नहीं, राइट। सो वी वांट के आपको गाइडेंस मिले तो आप अभी से स्टार्ट कर दो, राइट। वाई लेट क्यों करना है, राइट। स्टार्टेड एंड नाउ सॉल्विंग प्रॉब्लम, रिकर्जन प्रॉब्लम, ओके, दैट्स गुड। ओके, सो आपने रिकर्जन पे आ गए, यानी कि आपने ये एरे स्ट्रिंग वगैरह पहले से किया होगा, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सदानी साहिल, यस, ओके, गुड गुड गुड, ठीक है, यू आर गुड, राइट, यू आर ऑन द राइट पाथ ब्रो। जस्ट फॉलो दिस and you will be able to crack this company or whatever dream you have. नाइस, रिकर्जन पे आ गए मतलब काफी आपने एरे स्ट्रिंग वगैरह कर दिया होगा। स्टैक क्यू वगैरह किया क्या? हैव यू सॉल्व्ड स्टैक्स एंड क्यूज प्रॉब्लम्स? ओके, नॉट येट, ओके, ओके, नॉट एन इश्यू। ओके, बट रिकर्जन पे आ गए, लाइक या यू इन गुड फ्लो। So yes, guys, those who guys have not started, you guys can start from now, from the day tomorrow only. We will be sending you like the process, और देखो हमने ऑलरेडी प्रोसेस तो बता ही दिया है। विमसिकल का लिंक भी हम डाल देंगे, हमने जो भी प्रेजेंट किया था, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। बट हम वीकली टास्क आपको दे देंगे, आपको वो फॉलो करना है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, और डिस्कॉर्ड पे उसके डाउट सॉल्विंग भी रखेंगे हम, राइट। सो यप, आई थिंक दिस इज इट। इफ यू guys don't have any kind of doubts more, Jani, Viraj, is that okay? Yeah. Guys, please make sure that you join the Discord server as soon as possible because from the next session onwards, it will be all on Discord. Yeah, that's true. ये पहला सेशन था, सो सबके ईज के लिए, सबकी कन्वीनियंस के लिए वी हैव मेक इट डाउन टू गूगल मीट, सो आपको सबको इजी रहे। बट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन, डाउट सेशंस और जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह रहेगी वो डिस्कॉर्ड सर्वर पे ही रहेगा। सो मेक श्योर यू गाइस मेक एन अकाउंट इफ यू डोंट हैव एंड जॉइन द सर्वर। We have already sent the invite link in the chat section, you can join from there.
Harsh, can you just brief them about the Discord? Okay, sure, I'll do that. So for those of you who are not on Discord yet, so जो आप लोग जो भी Discord पे नहीं हो जो लोग अभी तक, so I'll suggest कि आप लोग Discord server join कर लो because उस पे काफी सारे additional announcements आते हैं. We also give you some notifications, and other than that, you can directly interact with the core team members on Discord. So just hop into a voice channel and we'll be there to help you out. अगर आपको कोई भी issue आ रहा है, or you have some sort of doubt regarding GSC, or you have some questions, about the upcoming sessions, you want to give some feedback, we also have dedicated support channels for all types of, let's say let's say about DSA, or let's say about the Compose Camp event that was there, and other channels too. So I hope you guys will join our Discord server. I'm looking forward to, seeing you guys there. Okay, so Sahil has a question like, how can we share our problems? Yep, you can just use any of the channels on our, support server. That's the Discord server. We do have dedicated channels for specific roles. Let's say we have a DSA channel, and we do have other channels too. So just join in the server, and you can learn more about GDSC. I hope that answers your question. Harsh, Yes, sir. uh, if you can show, like share your screen अगर Discord खुला है तो like what are the channels over there and like how do you post a query वाला thing, like just 30 seconds 1 minute kind of a thing, because someone has already asked that. So and then would be a good time to end the meeting. Okay, I'll just do that. Is my screen visible? Yes. Yes. Okay. So yep. So this is our Discord server basically, and you can see multiple channels over here that we have specific. This is for general chat. We have web development channels, so you can ask your questions regarding web development. We have AIML sections. We have Android section. So this was used in previous Compose camp. We do have cybersecurity channels, and in the similar way, we have multiple channels, and we also have voice channels. Dedicated to helping you guys out. And other than that, if you have any general queries, or let's say some other queries that do not fit into these channels, you can just use a general channel. And soon we'll be, adding more features over Discord server. We'll be adding role-based approach to everything. So it's going to be pretty fun for you guys, and it will be very easy to communicate with the core team directly. You can see many people have already started joining their voice chats too. So yep, that was all about our, the GDSC server. Alright, so anyone doing the conclusion and ending it?
Yes, I think Viraj is going to do that. Let's wait for Viraj. Viraj, are you there? Yes. Just please conclude the meeting. Okay. So I think he has some internet connectivity issues. So you guys already know about DSA, right? Everything was explained inside the session, and we recommend you that you follow the path that was shared, and we'll also be sharing the the form that we designed for that, and everything will be shared to you via email, and the session will also be shared to you via email. If you have any sorts of queries, you can just post them on Discord server, and we'll be there to answer you. And you guys can leave the meeting now. Thank you. Thank you for joining today.